Good morning, students. As we have completed our chapter 22 construction, today we will start with chapter 5 exponents. Now, first of all, what is this exponent? Exponent is called a power. Power, जो भी power होती है, that is called as exponent, or we can call it index. Exponent, power, index is one of the same thing. So, if I have taken any variable and it has a power x, या आपका ये if it is written in the form a power x, in this a is called a base. a क्या होगा आपका base and x is power, or we can say it exponent. So whenever any number or any variable is written with power, it is known as exponential form. If I have written a x power a, और आई हैव रिटन 3 पावर 5, दिस फॉर्म, ये जो फॉर्म होती है लिखी हुई, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो व्हाट डज दिस, इफ वी टेक एनी नंबर विद पावर 5, व्हाट डज इट मीन्स? इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द बेस. जो 3 आपका बेस है, इसको आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ओके, so what does this part is known as exponential form and this is your product form. तो अब आपने exponential form में करना है. Second thing, if I have taken 3 power 5, और अगर आपका जो base है, if I have taken base minus 3 and power is 3 and other number I have taken minus 3 and power is 4, what is difference between this? जब भी आपकी पावर ऑड होती है, एनी ऑड नंबर पावर इज देयर, द एंड द बेस इज नेगेटिव, बेस आपका नेगेटिव होगा और पावर आपकी अगर ऑड होती है तो उसका आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव में आता है. 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27, बट द पावर इज नेगेटिव, सो इट विल बी -27. So power is odd. Sorry, I've told negative. Power is odd and base is negative. Answer will always in the negative form. बाकी आपने numbers को तो multiply कर देना. Similarly, if the power is even and base is negative, तो जो उसका आंसर होगा वो हमेशा positive होगा. If I've taken -3 and you have to multiply 3 4 times, when you will multiply it 4 times, it comes 81. So here the power is even, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा. हैव यू नोटेड इट? अगर क्लियरली समझना है, अगर -3 पावर 3 को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, इट इज़ -3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपका 27 आ गया, बट माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आंसर नेगेटिव में आया ना. तो आपको ये कैलकुलेट करने की बजाय अगर आप सीधा भी लिख सकते हो, इफ द बेस इज नेगेटिव एंड पावर इज ऑड, आंसर विल बी नेगेटिव. इफ द बेस इज नेगेटिव, पावर इज इवन, द आंसर विल ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म. So first of all, related to these part, exponential form and product form, we will start our exercise 5A. In exercise 5A, first question it is given evaluate. Now what does evaluate means? We have to find the value of these numbers. आपने इस numbers की value find करनी है. If I am taking question number 1, second part, -5 power 3. -5 power 3 means -5 into -5 into -5. Now first of all, when we see the base is negative and power is odd, तो आंसर आपका तो नेगेटिव में आना है. And what will the number will be? First we have to multiply it. 5 5s are 25. 25 5s are 125. So answer is -125. Similarly, if I am taking the fourth part, it is given in the form of fraction, -5/2 and power 2. -5 upon power 2 means -5/2 into -5/2. Okay, now since base is negative and power is
पॉजिटिव, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। और मल्टीप्लाई कैसे करोगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर. You will get 25/4. So this is your answer. So for the evaluate, you only have to open the exponential form into the product form and then give the answer. What is that value? In question number 2, if I am taking the first part, question number 2, it is given express each of the following in exponential notation. आपने इसको exponential notation में लिखना है. exponential notation मतलब इसको आपने पावर्स में लिखना है. ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, पावर्स में आपने लेना है. नाउ बेस आर सेम, सारे बेस आपके सेम है. सो हाउ यू विल राइट इट? फर्स्ट पार्ट -7/13 और वो कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स. सो पावर विल बी 3. This is your exponential form or exponential notation. Similarly, second part, -8/3, it is repeated 4 times. So, it will be -8/3 power 4. Like this, you have to do question number 1 and 2. Now, we will come to question number 3. In question number 3, you have to express each of the following in exponential notation. इसमें आपको बेस सेम था और वो मल्टीप्लाई करके शो किया हुआ था. बट नाउ फर्स्ट पार्ट, इफ आई टेक 343/512, हाउ यू विल राइट इट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द फैक्टर्स. 343 के आप फैक्टर्स करो. इफ यू विल डू, व्हाट यू विल गेट? 7 से आप करते हो. नाउ इफ वी मेक द फैक्टर ऑफ 343, आप 7 से करते हो इसको, तो 7 4s are 28 and 7 9s are 63. Then 7 7s are 49, 7 1s are 7. Now you will make the factor of 512. Okay. सो आपने 512 के जो फैक्टर्स बनाने हैं, अगर आप 2 से लेते हो, 2 2s are 4, 2 5s are 2 6 are, 2 1s are 2 2s are 8s are, 2 6 and 4, 2 3 2, 2 16s are, 2 8s are, 2 4, 2 2 and 2 1. Now here the factor is 7 into 7 into 7. But downward in denominator, the factors are 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 times 9 2, 9 times आपके 2 हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बट वी हैव टू मेक द सेम पावर. जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं, आपने यह देखा होगा कि इनकी पावर सेम होती है. It means 5 भी 2 times था, 2 भी 2 times था. So we have to make it same. How you will make it? 7 कितनी times है? 3 times. It means आप 2 को 3 pairs में लोगे. Sorry, आप 2 का 3 का पेयर बनाओगे. What you will get? 8 and 8. 8 आपका 3 times आ गया, 8 power 3. So, what will be the exponential form? 7/8 power 3. So, when you have to express any fraction into exponential form, पहले तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे. फिर आपने देखना है कि लोवेस्ट पावर किसकी है. यहाँ पे 7 की पावर 3 है, पर यहाँ पे 2 की पावर क्या थी? 9. बट यू हैव टू मेक द पावर 3. तो आपने 3 का पेयर बना लिया यहाँ पे. तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 8. तो 3 8 आ गया आपके. 8 की पावर क्या होगी? 3. सो यू कैन राइट. जब दोनों की पावर सेम होती है तो आप ब्रैकेट के बाहर पावर कॉमन में ले सकते हो. 7/8 पावर 3. One part I will take it more, then you can understand easily. See the second part. -32/243.
फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन इन माइनस, तो आपने पहले माइनस तो यहाँ पे ले ही लेना है. नाउ फर्स्ट यू हैव टू टेक द फैक्टर ऑफ 32. 2 1 16, 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1. तो फैक्टर्स क्या है आपके? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स आ गया आपका ये. 243 के अब आपने फैक्टर्स करे. 243, 3 8 एंड 1, 3 2 7, 3 9 3 3 3 1. So it comes 3 into 3 5 times. Okay. Now both the powers, यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 5. और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर क्या है आपकी? 5. So what will be the exponential form? 2 upon 3 power 5. But here you see that the fraction is negative form और पावर आपकी ऑड आई है. इट मीन्स जो बेस है आपका दैट इज ऑल्सो नेगेटिव. ओके, तो जो भी आपके फैक्टर्स होंगे अगर तो पावर ऑड है तो यानी कि जो बेस है उसके साथ भी आपका कौन सा साइन लगेगा? नेगेटिव. ओके, नाउ थर्ड पार्ट, इट इज गिवन -1 upon 128. नाउ 1 तो आपका कोई इसके फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, तो 128 के आपने फैक्टर्स करने. 2 6 एंड 4, 2 3 2, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1. सो व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 128? 2 कितनी टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7. और 1 को भी आप लिख सकते हो 1 पावर 7. नाउ द पावर इज ऑड, इट मीन्स ये आपका नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा ही आएगा. नाउ हाउ कैन यू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म? -1 upon 2 और पावर आपने ले लेनी है कॉमन. सो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बस आपने नेगेटिव में याद रखना है, जब नेगेटिव पावर आए, नेगेटिव नंबर आए तो आप ये देखो कि पावर हमेशा ऑड होनी चाहिए, आपकी पावर इवन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने बेस अगर नेगेटिव है तो पावर ऑड होगी, तभी आंसर आपका नेगेटिव में आता है. सो फॉर टुडे you will go through exercise 5A question number 1, 2 and 3, and tomorrow we will start with the laws of exponents. So you will revise that. पर आज आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट करना है. थैंक यू.